जय इंडिया स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर प्रीति मित्तल एंड हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर की शुरुआत में हमने देखा था कि हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं एज प्योर एंड मिक्सचर्स, एंड देन वी स्टडीड इन डिटेल अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। नाउ आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट द प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस को बेसिकली क्लासिफाई करा जा सकता है एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. These elements and compounds will be studied in detail in this video. What are elements? This term element was first given by Robert Boyle in 1661. सबसे पहला ये term जो use किया था element, that was by Robert Boyle. And the explanation and the definition of the term elements was given by Antoine Laurent Lavoisier. He was a great French chemist who gave the definition of the element. Elements matter का वो form है जो सबसे pure है और उसमें उस particular type of particles के अलावा और कुछ भी नहीं है. There are approximately 118 known elements to us. और ये elements क्या हैं? उनके साथ में अगर आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू जस्ट स्टडी अबाउट गोल्ड, प्योर गोल्ड अगर आप लोगे तो उसमें आप पार्टिकल्स को कितना भी डिवाइड करते जाओ, उस गोल्ड के पीस को आप कितना भी डिवाइड कर लो, फिजिकल प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से, कुछ भी डिवाइड करने की कोशिश कर लो, यू विल फाइंड दैट स्टिल यू विल बी हैविंग द गोल्ड पार्टिकल्स ओनली. एंड दीज एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स. एलिमेंट्स के अंदर क्या होते हैं? एक ही पर्टिकुलर टाइप के एटम्स. So one particular type of atoms are there and they make up these elements. These elements could be further classified as metals, non-metals and metalloids. हम इसको 3 categories में divide कर सकते हैं. Okay? So let's study in detail about all these 3 types of elements, 3 categories of elements. So elements are basically classified as metals, non-metals and metalloids. तो हम पहले पढ़ते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में इन अ कंपैरेटिव वे. ओके, हम हमेशा कंपैरिजन करके इसलिए पढ़ते हैं सो दैट आप दोनों चीजों को एक साथ मेमोराइज कर पाते हो, अलग अलग 2 टॉपिक्स नहीं पढ़ने पड़ते हैं एंड हमारे दोनों टॉपिक्स एक साथ कवर हो जाते हैं. बट मेटलॉइड्स विल बी नोइंग सेपरेटली. सो फर्स्ट अबाउट मेटल्स. मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड. दे आर यूजुअली हैविंग अ सॉलिड स्टेट, बट सम एक्सेप्शंस आर देयर एंड दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज मर्क्यूरी. Mercury is the only metal that is liquid at room temperature. ये mercury आपने देखा है क्या? बिल्कुल देखा है. थर्मामीटर में mercury होता है. आपने बच्चों देखा होगा that when you take your measure your temperature, mercury level उसमें change होता है. So what is filled inside your thermometer, that is mercury. Next is some metals are there like cesium and gallium. They have a very low melting point. रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे बट थोड़ा सा हीट करने के लिए उनको टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करते ही दे विल बी टर्निंग लिक्विड. ऐसा कहा जाता है दैट इफ यू जस्ट टेक cesium or gallium on your palm and just close your palm, then with the heat of your palm only they will become liquid. Looks like a magic, but actually cesium and gallium are very very reactive and इतने reactive metals को आप हाथ में नहीं ले सकते. It's going to burn very easily. So cesium and gallium, remember that they are having a very low melting point and इतना low melting point होता है कि बस थोड़ा सा heat करा. How much it is it 303 Kelvin. Okay, 303 Kelvin is the melting point of cesium and gallium approximately. So इतना low temperature पे वो फटाफट से melt हो जाएंगे. Now if we talk about non-metals, then non-metals could be solid, sometimes gaseous, and could be liquid also. Why I have taken the name liquid at last? Because only one non-metal is there that is liquid at room temperature, and that is bromine. Bromine is the only non-metal that is liquid at room temperature. ठीक है? तो solids हो सकते हैं, ये gaseous state में भी हैं. Total 11 elements in your periodic table are in the gaseous state. 118 elements में से सिर्फ 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि गैशियस स्टेट में अकर करते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड ऑल दीज 11 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स ओनली. ओके, सो नॉन मेटल्स कुड बी इन द सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और इन द गैशियस स्टेट आल्सो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट लस्टर. Metals usually have a shine. They have a beautiful shine, and you must have seen that whenever you see some metals, then they usually reflect a lot of light. So they have a shine in themselves, and this property is known as luster. But if you see non-metals, they usually don't have luster. One such example is coal. If you see coal is an example of non-metal that is having carbon in it. So that is not having any luster.
but आप 10th में पढ़ोगे, but some non-metals are there that have this luster. One such example is iodine. Iodine is a non-metal, still it has that luster, shine है उसमें. Next is the color. Color of metals is usually grayish white or golden yellow. बट अगर आप नॉन मेटल्स को देखोगे तो नॉन मेटल्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ये एग्जिस्ट करते हैं. नॉन मेटल्स हैव ऑल डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, बट मेटल्स यूजुअली ग्रेइश व्हाइट और गोल्डन येलो कलर में एग्जिस्ट करते हैं. ओके, दैट्स नॉट ट्रू फॉर ईच एंड एवरी मेटल, बट यूजुअली है. नेक्स्ट इज मेटल्स आर मेलिएबल. व्हाट इज मेलिएबल? मेलिएबल मीन्स दे कुड बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स. हम इससे इनकी पतली पतली शीट्स बना सकते हैं. एंड यू नो सच एग्जांपल्स ऑफ दैट. इस प्रॉपर्टी को यूज करते ही हम बनाते हैं एल्यूमिनियम फॉइल, गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल. तो ये सारी फॉइल पॉसिबल है बनाना आउट ऑफ मेटल्स बिकॉज दे हैव मेलिएबिलिटी, मींस दे कुड बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स. इसकी एकदम पतली शीट्स बना सकते हैं, इसलिए हम एल्यूमिनियम फॉइल आप सबने देखा होगा. सिल्वर फॉइल एंड गोल्ड फॉइल भी एग्जिस्ट करती है. जो आप मिठाइयाँ खाते हैं, स्वीट्स के ऊपर एक वर्क होता है. यू कैन सी अ व्हाइट लेयर ऑफ दैट शाइनी लेयर इज देयर that gives a beautiful appearance to your sweets, and that is the silver foil. तो metals को use करके हम foils बना सकते हैं because they are very thin and they have the property of malleability. If you see the non-metals are usually not malleable. उनकी पतली पतली sheets आप नहीं बना पाओगे. Next is ductile. Metals are also very ductile. What is ductile? That they could be drawn into thin wires. तो उनसे आप wires बना सकते हो. And that is why we say that metals are ductile. बच्चों पता है पहले के टाइम में तो सिल्वर, गोल्ड, इन मेटल्स को यूज करके साड़ीज पे भी वर्क होता था. तो कॉपर वायर्स, इवन एल्यूमिनियम वायर्स आर देयर. और इन वायर्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है. टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब दे कैन कैरी अ लॉट ऑफ वेट और वो उसमें ब्रेक नहीं होंगे. तो मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हाई होती है. एंड नॉन मेटल्स यूजुअली couldn't be drawn into wires, that they are not ductile. एंड इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होती है. मतलब अगर आपने नॉन मेटल लिया और आपने उसके ऊपर किसी वेट को हैंग करने की आप कोशिश करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा. वो दैट वोंट बी एबल टू बेयर दैट वेट. सो दैट इज हैविंग द लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. Now, next is metals are usually sonorous. Sonorous means that they are going to produce some voice. If you strike a metal, then you must have heard that a sound is produced. That property is known as sonorous, and that is why metals को use करके हम बनाते हैं स्कूल की bells. तो bells बनाने के लिए usually metals ही use कर सकते हैं हम, क्योंकि metals हैं sonorous. Non metals की अगर बात करें तो non metals are usually not sonorous. Next properties is that metals are usually good conductors of heat and electricity. Heat और electricity को conduct करते हैं, इसलिए हम जितने भी utensils होते हैं वो heat को conduct कर लें, इसलिए हम metals से ही utensils बनाते हैं. उसके अलावा जितने भी वायर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कॉपर, क्योंकि कॉपर एक मेटल है और वो अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. बट द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिमेंबर दैट इट इज सिल्वर. ओके, सबसे बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कोई है तो दैट इज सिल्वर. इफ वी टॉक अबाउट नॉन मेटल्स आर यूजुअली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. यूजुअली हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते. ये सभी प्रॉपर्टीज, दैट इज द जनरल प्रॉपर्टीज, आर फॉर यूजुअल मेटल्स एंड यूजुअल नॉन मेटल्स. सबके लिए नहीं है. देयर आर एक्सेप्शंस टू ईच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज. कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो कि बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे, लाइक मर्क्यूरी, लेड. सो ऑल दैट यू विल बी रीडिंग इन योर हायर क्लासेस, बट we are just talking about the properties in general that is there in most of the metals or most of the non-metals. Next, examples. If we talk about the examples of metals, that includes gold, silver, copper, aluminium. So there are many examples of metals. Next is the examples of non-metals. That includes nitrogen, hydrogen, oxygen, then fluorine, chlorine, bromine, all are there. Okay, just point out, I just told you that there is only one non-metal that is liquid at room temperature. Its name is here in the examples also. Just figure out what is the name of the only liquid non-metal. Okay, and let me know in the comment section, were you able to find it out by yourself? So that's a comparative study of metals and non-metals. Now let's see about metalloids. What are metalloids? Next is metalloids. Metalloids have the property
of some properties of metals and some properties of non-metals. इनकी कुछ properties metal से match करती है और कुछ properties non-metal से match करती है, and so they are known as metalloids. You can easily remember the metalloids by a trick. So that is बोली, सीता, जी, ऐसे, सब, तेरे, पुण्य. Okay, these are all metalloids. Boli, Sita, Ji, ऐसे सब तेरे पुण्य. By remembering just this mnemonic, you can remember the name of all the metalloids. 9th standard की NCERT book में सिर्फ first 3 non-metalloids दे रखे हैं, that is boron, silicon and germanium. But in higher classes ये सारे metalloids आपके लिए आएंगे, and it's very good to remember it right now itself. Okay. मेटलॉइड्स के बारे में और डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. फॉर दिस क्लास जस्ट रिमेंबर द नेम्स ऑफ द मेटलॉइड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ metals and non-metals. Okay, they have some properties of metals and some properties of non-metals. That's all about the elements. And now we'll move on to the compounds. What are compounds? When 2 or more than 2 elements combine together chemically and form a new substance that is known as a compound. ठीक है. For example, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है तो कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, एंड जब ये दोनों केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस बनता है, एंड दैट इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड. We have many more examples of compounds like water is another compound. तो water में क्या है? Hydrogen combines with oxygen to form water. But hydrogen, you all know it's a gas. Oxygen is also a gas, and both supports fire. दोनों ही सपोर्ट करते हैं फायर को, बिकॉज हाइड्रोजन इज एक्सेलेंट फ्यूल. इट्स यूज्ड एज अ फ्यूल इन रॉकेट्स. ऑक्सीजन हर चीज को बर्न करने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है. बट देखो बच्चों, दोनों के कंबाइन होने से जो वाटर बना उसी को हम यूज करते हैं टू पुट ऑफ फायर. फायर को बुझाने के लिए हमें काम आएगा. सो यू कैन बाय दैट एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड दैट कंपाउंड्स जब बनते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज उनके कॉम्पोनेंट एलिमेंट से चेंज हो जाती है. उनकी प्रॉपर्टीज उनके कॉम्पोनेंट एलिमेंट्स जैसी नहीं रहती. ओके, तो ये है, दीज आर सम कंपाउंड्स. कंपाउंड्स जब भी बनेंगे तो उसमें दे कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नॉन मेटल्स, दे कुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल ऑल्सो. ठीक है, जब 2 नॉन मेटल्स कंबाइन करेंगे तब भी कंपाउंड्स बन सकते हैं. when a metal and a non metal combine, then also they can lead to the formation of compounds. ठीक है, ये NaCl क्या है? that is common salt. सोडियम क्लोराइड जो हम खाने का नमक बोलते हैं, that is NaCl. Okay, तो compounds are formed by the combination of elements, and ये elements combine होंगे एक fixed ratio में. That is very very important. Fixed ratio में क्यों? Because अगर हम एक example देखें तो if carbon combines with 1 atom of oxygen, that forms carbon monoxide, जो कि एक different compound है as compared to when carbon combines with 2 atoms of oxygen, that forms carbon dioxide. और ये दोनों ही compound different हैं, इनकी properties different है. इसी तरह से H2O is water and H2O2 होता है एक compound, that is hydrogen peroxide. So जब भी compounds बनेंगे, elements combine with each other in a fixed proportion only. ये बहुत important है compounds के लिए कि इनका proportion, किसी भी compound में इन elements का proportion same होगा. इलेक्ट्रिकल प्रोसेस से हम इन एलिमेंट्स को सेपरेट आउट भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप वाटर में से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को सेपरेट आउट करना चाहें तो जस्ट पास इलेक्ट्रिसिटी. जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अलग अलग सेपरेट आउट कर सकते हैं. तो कंपाउंड्स कुड बी ब्रोकन इनटू इट्स कंपोनेंट एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस. जबकि हमने देखा था एलिमेंट्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. वी कैन नेवर डिवाइड द एलिमेंट्स, बट कंपाउंड्स को हम डिवाइड कर पाते हैं. ओके, बिकॉज पर अगर हम फिजिकल मेथड से देखें लाइक हीटिंग और एनी अदर मेथड, तो फिजिकल मेथड से हम इन कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकते. आप कितना भी वाटर को हीट कर लो, उसमें से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते. तो फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, बट केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. ओके, so that is like a differentiating point between the elements and compounds. This property of having a fixed proportion in case of compounds ही उसे differentiate करता है from alloys. Remember alloys हमने पढ़ा था कि alloys में metals का combination होता है दूसरे metals के साथ में या non metals के साथ में, और उसका एक fixed proportion नहीं होता, and that is why हमने कहा था alloys क्या है? Mixture है.
क्योंकि उसमें परसेंटेज थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, प्रपोर्शन थोड़ा वेरी कर सकता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज टेकन एज अ अलॉय एंड नॉट अ कंपाउंड. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दी कंपाउंड्स. एक एक्टिविटी भी हम परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने कुछ आयरन के पीसेस लिए और हमने लिया कुछ सल्फर पाउडर. अब इन दोनों को हम मिक्स कर दें. ओके, आयरन फिलिंग्स लिए, सल्फर पाउडर लिया, दोनों को मिक्स कर दिया. अब अगर हम मिक्स करके इनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो हमें दिखेगा कि सल्फर इज स्टिल येलो इन कलर. सल्फर का कलर येलो होता है. मिक्सचर बनाने के बाद भी इसका कलर येलो ही है. और आयरन के पास अभी भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, और इसलिए हम आयरन के पास में, हम इस मिक्सचर के पास में अगर कोई मैग्नेट लेकर आएंगे तो मैग्नेट की तरफ ये आयरन अट्रैक्ट होगा. एंड दैट शोज कि हमने जब मिक्सचर बनाया तो उसके कंपोनेंट के जो प्रॉपर्टीज थी वो रिटेन रही. बट यही हम आयरन एंड सल्फर को लेके अगर दोनों को मिक्स करके और हीट करना स्टार्ट कर दें तो इफ यू हीट देम देन यू विल फाइंड कि आयरन सल्फाइड बन जाएगा. ओके, आयरन सल्फाइड फॉर्म हो जाएगा, मतलब एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा. इन एलिमेंट से कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, दैट इज आयरन सल्फाइड. एंड ये आयरन सल्फाइड इज हैविंग टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम आयरन एंड सल्फर. ये आयरन सल्फाइड का कलर ब्लैक होता है. मैंने आयरन 2 सल्फाइड क्यों लिखा है, क्योंकि ये वैलेंसी होती है आयरन की. ओके, तो you will come to know about that in the subsequent chapters. So iron 2 sulfide is formed, और ये iron sulfide जो बनेगा that is having different properties as compared to its components. iron sulfide को अगर आप देखोगे तो that will be having a black color, जबकि sulfur का एक we were having sulfur that was yellow in color. अब iron sulfide जब बना है तो that is having a black color. उसके अलावा अगर आप एक मैग्नेट पास में लेकर आएंगे आयरन सल्फाइड के, देन यू विल फाइंड कि वो मैग्नेट सल्फर आयरन सल्फाइड को अट्रैक्ट नहीं कर रहा. अब उसमें से आयरन के पीसेस सेपरेट आउट नहीं कर रहे, दैट इज नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट. तो जब भी कंपाउंड फॉर्म होते हैं एलिमेंट्स से तो उनकी प्रॉपर्टीज टोटली चेंज हो जाती है. बट जब हम मिक्सचर बनाते हैं इन्हीं एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को मिक्स करके तो उसमें उन कंपोनेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लॉस्ट नहीं होती, या कंपोनेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज लॉस्ट नहीं होती. तो मिक्सचर्स जब भी बनेंगे तो कंपोनेंट्स की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज लॉस नहीं होंगी, बट जब भी एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं. ओके, एक बात और बच्चों, हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं हमने उसमें एक दो एलिमेंट्स ही लिए हैं, बट इट्स नॉट सो कि सिर्फ दो ही एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. Glucose is having 3 elements in that. Okay, carbon, hydrogen and oxygen. So number of elements that are present in a compound, it's not fixed. Okay, that could vary from one compound to another. Okay, so I hope you are clear with the concept of elements and compounds. Now just let us compare the elements with the compounds. In this chapter, various comparisons are given. And these comparisons are very important for your exams. Like you could be asked the comparison between solutions and suspensions, comparison between homogeneous and heterogeneous mixtures. So various comparisons are possible and they are very, very important for your exams. So now let's have a comparison between elements and compounds. Elements cannot be broken down into any simpler substances. So by any method, by chemical, electrochemical, whatever method we can do, but we cannot split the element into any simpler substances. So that is about elements. But if we compare that with compounds, compounds do have a fixed composition, but they are made up of elements. And so that could be broken down into its component elements by some chemical or electrochemical processes. For example, if we have water, water is a compound. And if we want to break this water into its components, we can pass electricity through it. So if we pass electricity through water, then water would be broken down into its components, that is hydrogen and oxygen gas will be formed when we pass electricity through water. So that shows that compounds could be split into its component elements. Next is, elements consist of only same kind of atoms. If we just have a pure element with us like copper, and if we keep on dividing that copper into smaller and smaller pieces, then we'll find that still we'll be having copper particles only. So they are made up of atoms of the same kind. But if we compare it with the compounds are formed by atoms of 2 or more than 2 kind of atoms. So if we compare, like if we just take common salt has atoms of sodium and chlorine.
So this sodium and chlorine both are elements, but this compound NaCl, that is common salt, is made up of two kind of atoms. So various compounds could be formed of two or more than two kind of atoms. Next is the examples. So the examples of metals, non-metals, metalloids, all these examples will be included in the examples of elements. So it includes gold, silver, mercury, bromine, boron. So I have tried to include some metals, some non-metals, and a metalloid boron. Okay, so that includes examples of metals as well as non-metals and metalloids. They are all examples of elements. But examples of compounds includes water, carbon dioxide, carbon monoxide, and glucose. Okay, so the last two examples here, the carbon dioxide and carbon monoxide, simply shows that if the composition is changed, then the name of the compound also changes. So just always remember that compounds always have a fixed proportion of the atoms present in it. Okay, so that's all about the comparison between elements and compounds. Now let's have a look at the comparison between compounds as well as mixtures, because we have studied about the mixtures as well as compounds. So now let's compare them. So now mixtures are formed when elements or compounds just mix with each other. They are not reacting with each other, they are just mixed with each other, and so no new compound is formed. And the chemical composition of the constituents is also not changed. So if we see that chemically the constituents are still the same only. But in case of compounds, the elements react with each other to form a compound. So here it's a chemical reaction that is taking place to form a compound. But in case of mixtures, there is no chemical reaction, and so the component constituents of that mixture are still having the same chemical properties. Next, if we talk about the mixtures that has a variable composition, that composition is not fixed. So if you want to dissolve salt in water, you can dissolve any amount of salt in water. Either you can choose to just mix 1 spoon of salt, or you can mix 3 spoons of salt in 100 ml of water. तो composition mixtures में fixed नहीं होती, that could be changed. But if we compare it with compounds, compounds में हमेशा chemical composition जो रहती है, proportion of the elements in a compound is always fixed, and that is why compounds have a fixed formula. For example, CO is carbon monoxide, and CO2, अगर 2 atoms हैं oxygen के combined with 1 atom of carbon, then it forms CO2, and carbon dioxide is having different properties as compared to carbon monoxide. Okay, so they always have a fixed composition, and that is why they have a fixed formula also. Now next is, a mixture has the properties of its constituent substances. If we just observe a mixture and we want to see the properties of the constituents are still there or not, then we will find that still the component is having its properties. I'll just show you one more example for that in detail, but I'll just tell you one thing, that if we just mix iron with sulfur, then still iron will be attracted by a magnet. But if they are made to react with each other, then that will not be attracted towards the magnet. So if we just compare that with the compound, the properties of a compound are totally different from its constituents. For example, water only. Water is made from hydrogen and oxygen. Hydrogen is a gas, oxygen is a gas, both support burning, both support combustion. But if we take the example of water, that is formed by the combination of the two, that is having totally different properties. It is just used to put off wire. Okay, तो कहाँ ये दोनों oxygen and hydrogen individually they just help to burn something, but water helps to put off the fire. That is why the compounds are having totally different properties as compared to its constituents. Now, in case of a mixture, the constituents could be separated from each other by simple physical methods. Like heating is a physical method, or magnetic separation. So if you want to separate salt from water, आप उसको हीट करिए, water evaporate हो जाएगा and you will be left with salt. तो easily आप physical method से components को separate out कर सकते हो. But if we compare that with a compound, you cannot separate the components of a compound without any chemical or electrochemical process. Chemical or electrochemical process से आप उनको separate कर सकते हो, but without a chemical or electrochemical process, you cannot separate the components of a compound. So that is the difference between mixture and compound. Now the next step is, mixtures does not have a fixed melting and boiling point.
But if we compare it with a compound, the compounds always have a fixed melting and boiling point. And one such question is given in your NCERT book also, that how will you find it out, that if some water is given to you, how will you find out that the water that you are given is pure water or not? So if you want to just check that the water that you are having is pure or not, then just check the boiling point of water. Then you will find that if its boiling point is exactly 100 degrees Celsius, then it's pure water. But if it's a mixture, then the boiling point would be somewhere less or more than that. Okay, so that's all between the comparison of mixtures and compounds. I'll just shift aside so that you can take a screenshot. Now let's understand more about the comparison of mixtures and compounds with an example. Suppose हमने iron and sulfur लिया and we just mix them. You know that iron is attracted towards a magnet and sulfur is having a yellow color. If we just mix them, we will find कि इनकी individual properties अभी भी retain है. Still, the sulfur will be having its yellow color, and still we can separate out iron from this mixture by bringing a magnet close to it. So magnet अगर हम पास में लाएंगे तो we will find that magnet will be attracted, the iron will be attracted towards the magnet, and that is why magnetic separation इन दोनों का possible है. बट यही हम अगर आयरन और सल्फर लेते हैं और हम इनको हीट करते हैं तो हीट करने से एक कंपाउंड बन जाएगा, एंड दैट इज आयरन सल्फाइड. अगर हम आयरन और सल्फर को लेते हैं और उन्हें हीट करते हैं तो आयरन सल्फाइड नाम का एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा. अगर इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को हम देखें तो इट इज हैविंग अ ब्लैक कलर. तो सल्फर का अब येलो कलर हमको विजिबल नहीं होगा, उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गया है, और जो कंपाउंड बना है दैट इज हैविंग अ ब्लैक कलर. अगर हम मैग्नेट पास में लाके देखते हैं तो अब मैग्नेटिक सेपरेशन भी पॉसिबल नहीं होगा. तो मैग्नेट लाने से हम आयरन को इस कंपाउंड में से सेपरेट आउट नहीं कर सकते. आयरन सल्फाइड जो बना है दैट इज अ कंपाउंड, और अब आयरन और सल्फर दोनों की ही इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज इस कंपाउंड के फॉर्म होने के बाद लॉस्ट हो चुकी हैं. ओके, सो दैट इज व्हाई वी सेड दैट केमिकल चेंज हो जाता है, केमिकली चेंज हो जाते हैं कंपाउंड्स, एंड उनकी प्रॉपर्टीज भी पूरी तरह से चेंज हो जाती हैं. नेक्स्ट, अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड नाम का एक कंपाउंड है, अगर उससे मिक्स करते हैं इस मिक्सचर को, तो हम देखेंगे कि कार्बन डाइसल्फाइड में ये दोनों को अगर हम डिसॉल्व करते हैं सो विल फाइंड दैट सल्फर विल बी डिसॉल्व्ड इन दैट, बट आयरन को हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं. आयरन सेटल डाउन हो जाएगा उस टेस्ट ट्यूब में बॉटम पे, और अगर हम इनको सेपरेट करना चाहते हैं तो सिंपली फिल्ट्रेशन से छान कर हम इस आयरन को सेपरेट आउट कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमें सल्फर भी सेपरेट आउट करना है इस मिक्सचर में से, तो अगर हम हीट करेंगे तो ये कार्बन डाइसल्फाइड इवेपोरेट हो जाएगा और हमारे पास सल्फर पाउडर हमें वापस मिल जाएगा. सो जस्ट बाय फिजिकल मेथड्स हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. सिर्फ फिजिकल मेथड हमने किया है, कार्बन डाइसल्फाइड हमने डाला, उसके बाद हमने आयरन को फिल्ट्रेशन से वापस हमें मिल जाएगा, और सल्फर विल गेट बैक जस्ट बाय इवेपोरेशन. तो जब मिक्सचर फॉर्म होता है तो उसके कंपोनेंट्स को सिर्फ फिजिकल मेथड से हम वापस रिटेन कर सकते हैं. अगर यही कार्बन डाइसल्फाइड हम आयरन सल्फाइड के साथ में रिएक्ट करवा हम ऐड करते हैं तो विल फाइंड दैट हम इस दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे, एंड वी विल फाइंड दैट हम आयरन को सेपरेट आउट नहीं कर सकते. कार्बन डाइसल्फाइड को यूज करके हम कंपाउंड आयरन सल्फाइड में से आयरन को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, बट कार्बन डाइसल्फाइड को यूज करके हम मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर में से आयरन को सेपरेट आउट कर सकते हैं जस्ट बाय फिल्ट्रेशन. ओके, थर्ड स्टेप इज रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों ही एसिड्स हैं, और अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में इस मिक्सचर को, मतलब आयरन एंड सल्फर के मिक्सचर को रिएक्ट करवाएंगे तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस एस्केप आउट होगी. हाइड्रोजन गैस एस्केप आउट क्यों हुई? फॉर एग्जाम्पल, हमने इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाया तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में. आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इफ यू रिमेंबर. तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी. आयरन ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हाइड्रोजन से, और इसलिए वो हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद रिएक्ट कर जाएगा क्लोरीन के साथ में. क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना लेगा, और जो गैस लिबरेट आउट होगी वो होगी हाइड्रोजन. ओके, ये रिएक्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको बस इतना याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट होगी अगर हम इस मिक्सचर को किसी डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं. ओके, तो जो गैस बाहर आएगी दैट इज हाइड्रोजन. दैट शोज कि मिक्सचर जब हमने बनाया आयरन और सल्फर का, तो आयरन जिस तरह से इंडिविजुअली रिएक्ट करता है एसिड से, उसी तरह से मिक्सचर की प्रेजेंस में भी आयरन उसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है. ओके, तो दैट इज एन एग्जांपल कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन आर नॉट लॉस्ट. जब भी मिक्सचर फॉर्म होते हैं तो कंपोनेंट जो है उसके, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उसके, दैट आर नॉट गोइंग टू चेंज देयर प्रॉपर्टीज. ठीक है, अगर आप आयरन को सिंपली भी लोगे तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में सेम रिएक्शन ही शो करता है.
बट अगर हम आयरन सल्फाइड को लेते हैं, आयरन सल्फाइड को लिया हमने और अगर हम उसको रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो विल फाइंड दैट H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिबरेट आउट होगी अब। और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिबरेट आउट हुई है, इसका पता कैसे चलेगा हमें? तो इसका पता करने के लिए इफ यू जस्ट स्मेल दैट, यू विल हैव द स्मेल ऑफ रॉटन एग्स, सड़े हुए अंडों जैसी इसमें स्मेल आएगी, एंड दैट इज शोइंग दैट आयरन सल्फाइड है यहाँ पर। और आयरन सल्फाइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाता है तो रिएक्शन डिफरेंट होती है। बट यहीं हम आयरन को सिंपली अगर इंडिविजुअली भी रिएक्ट करवाएंगे तो भी रिएक्शन वही है, और अगर इस मिक्सचर को रिएक्ट करवा रहे हैं तब भी रिएक्शन सेम है। तो जब मिक्सचर फॉर्म होते हैं तो कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, जो उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं कंपोनेंट्स की वो रिटेन रहती हैं। बट जब कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज नहीं रह जाती, अब प्रॉपर्टीज दैट विल बी फॉलोड इज ऑफ दैट ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, इस एग्जांपल के बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है? सो यू कुड बी आस्क्ड दैट व्हिच गैस इज लिबरेटेड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर आर मेड टू रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और आपसे पूछ सकते हैं कि आपने आयरन एंड सल्फर को मिक्स किया, उसे हीट किया, एक कंपाउंड फॉर्म हुआ, उस कंपाउंड को अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाया तो स्मेल ऑफ रॉटन एग्स आई। So you have to tell the name of the gas that is liberated out during the process. Okay, so such type of questions could be there, and you know that the gas liberated out is hydrogen sulfide. हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्मेशन की वजह से रॉटन एग्स जैसी स्मेल आ रही है। Okay, so by that we have seen the comparison of compounds and mixtures. Next we'll move on to physical and chemical changes. So now we have reached to the last part of our chapter, that is physical and chemical changes. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में, और हमने देखा था रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इंटरकन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी मैटर की। जब भी हम कोई ऐसा चेंज करें जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की चेंज हो जाएं, तो ऐसे चेंजेस को कहते हैं फिजिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व कर ले तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, और इसी चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। सो मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, जिसमें वाटर की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, केमिकली स्टिल इट्स द सेम। नाउ इफ वी जस्ट कंपेयर इट विद केमिकल चेंजेस, देन व्हाट आर केमिकल चेंजेस? केमिकल चेंजेस वो होते हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी बर्न कोल, तो कोल को बर्न करने पे कार्बन प्रेजेंट इन कोल रिएक्ट्स विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन to form carbon dioxide, and this is an example of chemical change, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है इस रिएक्शन में। केमिकल चेंजेस को ही केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। ओके, तो बच्चों फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को कंपैरेटिव वे में स्टडी करते हैं, सो दैट इट विल मेक योर लर्निंग टू बी वेरी वेरी इजी। सो लेट्स सी, physical changes are those in which only physical properties like melting point, boiling point, rigidity, fluidity, state of matter, all such changes are regarded as physical changes. तो जब ये सिर्फ ये physical properties change होती हैं और कोई नया substance form नहीं होता, तो ऐसे changes को कहा जाता है physical changes. But what are chemical changes? केमिकल प्रॉपर्टीज जब चेंज हो जाएं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाए तो सच अ चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज। एंड आई टोल्ड यू, केमिकल चेंजेस को ही हम केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ही नहीं, केमिकली भी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं, केमिकली न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, तो सच अ चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज। नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल चेंजेस यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं। ऑलवेज यूज द वर्ड यूजुअली, क्योंकि कुछ फिजिकल चेंजेस भी इरिवर्सिबल होते हैं। फर्स्ट आई टेल यू द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल। फिजिकल चेंजेस यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं, लाइक इफ यू हैव वाटर एंड यू हीट इट, दैट गेट्स कन्वर्टेड टू स्टीम, बट इस स्टीम से आप वापस वाटर बना सकते हो बाय जस्ट कूलिंग इट डाउन। कंडेंसेशन प्रोसेस से वापस स्टीम से वाटर फॉर्म हो जाएगा। बट अगर हम कुछ चेंजेस देखें, लाइक कटिंग ऑफ फ्रूट्स टू मेक फ्रूट सैलेड, दैट इज अ फिजिकल चेंज, बट इस फ्रूट सैलेड से हम वापस फ्रूट नहीं बना सकते। तो ये फिजिकल चेंज तो है क्योंकि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, बट स्टिल इट इज इरिवर्सिबल। तो बेटर ऑलवेज यूज द वर्ड यूजुअली। ठीक है, नेक्स्ट, केमिकल चेंजेस यूजुअली इरिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोल को बर्न करा और उससे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया, तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके आप वापस कोल नहीं बना सकते, इसलिए यूजुअली केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। बट अगेन आई हैव यूज्ड द वर्ड यूजुअली बिकॉज सम केमिकल चेंजेस आर आल्सो रिवर्सिबल, और इन्हें हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, जिनके बारे में डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे।
Next comes the examples. Physical changes के बहुत सारे examples आप जानते हैं. Let's see some of them. Interconversion of states of matter, like melting of ice to form water and heating of water to form steam. So interconversion of state of matter is example of physical change. Apart from that, dissolving sugar or salt in water, cutting of fruits to make fruit salad, or tearing of paper to form bits of paper, yeah, mixing of iron fillings and sulfur, these are all examples of physical changes. क्योंकि इसमें individual particles अपने properties lose नहीं करते. हमने देखा भी था iron fillings and sulfur के बारे में, that iron and fillings and sulfur को mix कर दो तो still iron could be separated just by magnetic separation. Magnet पास में लेकर आएंगे तो iron अभी भी उसकी तरफ attract होगा क्योंकि iron की original properties lost नहीं हुई हैं. Now, in case of chemical changes, examples are rusting of iron, burning of wood or paper, changing of milk to form curd, yeah, digestion of food. These all are examples of chemical changes. So, I hope you are clear with all the concepts of the chapter. I have tried my level best to complete the entire chapter in minimum possible time. So, if you like the explanation, do share it with your friends and help me to spread knowledge. That's all for today. Good day, everyone. Now I'll just shift aside so that if you want to take a screenshot, you can take that. Have a good day, everyone.